Chalo, assalamu alaikum. So we'll start with the last, and there are many topics to do in this, but we are taking this because this is very important. Okay, non-linear programming problem. सबसे पहले linear का मतलब पता है आपको? Linear मतलब? y equals to mx plus c. Very nice. That means the highest degree of the equation is equal to 1, right? X is Yes, sir. equal to 1 or x plus y. When there is addition, both are 1, right? So this kinds of equations are called as linear equations. Everyone agrees to what I'm saying? Yes, sir. Whether it is in Z or it is in constraint equation, please try to understand what I'm saying. Z or constraint equation. Z क्या रहता था अपना 3x1 plus 4x2 subjected to x1 plus x2 is equal to less than equal to 10. अब बताओ, is this a linear constraint or not? Yes, sir. Both are Yes, linear. sir. Everyone agrees? Yes, sir. Even though it is addition, there are two variables, but both are linear because addition does not change the degree. Am I right? Addition does not change the degree of the equation. Even if one of the variable is plus 3 x raised to 0, but since the highest degree is 1, that's why it is called as linear equation. Okay? Now, I'll tell you something about non-linear. देखो non-linear क्या होता है? X into y is equal to 3. Now this is non-linear क्योंकि ये इक्वेशन की डिग्री 1 plus 1 कितनी हो गई है? 2. ओके, तो अगर सपोज करो आपका z लिखा है x1 into x2 into x3 subjected to x1 plus x2 plus x3 is equal to 10. मैं इक्वल टू लिख रहा हूं डायरेक्ट, समझ के लो. ठीक है, इसका मतलब है ये लीनियर है. यस और नो? कंस्ट्रेंट क्या है? लीनियर. और ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? Non-linear. नॉन लीनियर. ये भी कंडीशन अराइज हो सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि आपका z रहे x1 प्लस x2 प्लस x3 सब्जेक्ट टू x1 into x2 into x3 is equal to 10. I hope you're getting. इसमें Yes, क्या sir. होगा? ये होगा लीनियर, ये लीनियर इक्वेशन है, और ये क्या हो Constraint are जाएगा? non-linear. नॉन लीनियर. Non-linear. Everyone agrees? Yes, sir. Now we are going to solve both types, but I will take one type and I'll refer you the another type where it is present. Okay, don't worry. So I'll just take a question. Maximize z is equal to x1 plus x2 plus x3 subject to there is some background noise at someone's place. Please try to keep your mic off if there is some background noise. Okay, and whenever you want to speak you can put your mic on. That's not an issue. Now subject to x1 into x2 into x3 is equal to 27, where x1 x2 x3 is greater than equal to 0. अब बोल रहा है सॉल्व. क्या बोल रहा है? सॉल्व. Is everyone okay with the question? Is everyone okay with the question? Yes. Yes, Now sir. listen to what I am saying. Very nice. This any kind of non-linear program, any kind of non-linear programming problem, okay, any kind of non-linear programming problem I am adding, okay, again, is solved by only one approach, that is called as dynamic programming approach. Okay, remember this. कौन सी अप्रोच से सॉल्व करते हैं? डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच. And if you remember, dynamic programming approach uses which approach? Reverse approach. Reverse recursive Approach. बैकवर्ड था यार, रिवर्स नया वर्ड ले आए. बैकवर्ड recursive approach. Okay, and in this there are some terminologies. If you remember, state, decision variable, and criteria of effectiveness, right? Right, sir. Now criteria of effectiveness here is z max. Everyone okay? Decision variable is x1 x2 and X3. x3. Stage
End state, we need to define this for this. Okay, we will define it right now. Don't worry. Is everyone understanding what I'm saying? Yes, sir. Now, just Yes, look so to what I'm saying. Okay, just listen. Now listen. Backward recursive approach में we will take this. Okay, first step. Please ध्यान दो. This second step and this as third step. Please ध्यान दो. N is equal to 1. How many stages to go? One more stage to go. N is equal to 2. मतलब पहले में जब वेरिएबल एज्यूम करोगे तो सिर्फ क्या लोगे? सिर्फ x3, x2, x1 है ही नहीं. समझा मैं क्या बोल रहा हूं? yes, sir. फिर x2 लोगे और x2 की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? x3 पे भी डिपेंड करेगी. समझ रहा है ना? क्योंकि x3 के रिजल्ट को तुम यूज करोगे x2 बनाते वक्त. ओके, x2 प्लस x3 लोगे Okay, जब sir. n इज इक्वल टू 2 लोगे, और जब n इज इक्वल टू 3 लोगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 लोगे और x2 और x3 के रिजल्ट को यूज करोगे फाइनल आंसर बताने में. दिस इज कॉल्ड एज बैकवर्ड रिकर्सिव अप्रोच. एवरीवन ओके? Okay, sir. ओके. नाउ इसमें कितना स्टेज होगा? कितने स्टेज है? कितने स्टेज है? 3 स्टेज है. बराबर ना? हाँ या ना? Yes, sir. बराबर. Yes. अब ध्यान देते हैं. स्टेज क्या बोला? स्टेज n is equal to 1. What means? One more stage to go. Step नहीं, stage to go. चाहिए तो क्वेश्चन फिर यहां लिख देता हूं तुम्हारे अच्छे के लिए. मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 subject to what? x1 into x2 into x3 is greater than equal to, greater था लेस था? नहीं सर, इक्वल टू दैट 27. ओके, इक्वल टू है डायरेक्ट. हाँ, इक्वल टू है. इक्वल टू 27 and x1, x2, x3 greater than equal to 0. 0. Is everyone getting to what I'm saying? Just give me a nod, yes or no. Yes, sir. Everyone? Yes, sir. Everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. Now listen. जब मैं बोल रहा हूं only one stage, तो मैं यहां पर हूं ना? बराबर? तब मैं जब लिखूंगा, देखो मैं लिख रहा हूं मैक्सिमाइज, क्वेश्चन सेम है. z इज इक्वल टू x3. सिर्फ क्या बचा? x3 सब्जेक्ट टू x3 इज इक्वल टू व्हाट? x3 इज इक्वल टू, बोलो बोलो बोलो. X3 equal to x3 इक्वल टू, 27 divided by we can't take it 27 and we can't divide it by x1 and x2 because we are saying x1 x2 does not exist, and we know that x3 cannot be alone equal to 27. How can you guarantee x3 is equal to 27? That means you are declaring that x1 and x2 is equal to 0. I hope you're getting. yes. In some way or the other, you are saying that I am very sure x3 is equal to 27. That means you are declaring x1, x2 is equal to 1. x1 is equal to 1, x2 is equal to 1. You are declaring something. You can't declare without any basis. Okay? You can't declare any variable. Everyone is okay? Okay, Yes, sir. sir. Yes, sir. So, in this case, in this kind of case, whenever you take something, just give me a second. I need to delete this. एक मिनट. हाँ अल्लाह, देखो x3 को मैं एक स्टेट मान लूंगा जिसकी वैल्यू रहेगी s1. समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मैं डिक्लेयर नहीं कर सकता x3 की वैल्यू क्या है, मुझे नहीं पता. मैं कैसे एज्यूम कर दूं डायरेक्ट 27 है? तो इसको बोलते हैं स्टेट. स्टेज क्या है वो समझ गया सबको? और स्टेट क्या है वो भी समझ गया? हाँ या ना? जल्दी बोलो. हाँ. Yes, sir. ठीक है, जो तुम नहीं बता सकते वो है मेरा स्टेट. मुझे नहीं पता ये स्टेट की वैल्यू क्या है. अब जाते हैं दूसरे स्टेज की तरफ. दूसरा स्टेज क्या है? स्टेज n is equal to 2. How many stages to go? 2 more stages. 2 more stages to go. Very important step for you to understand. 2 more stages to go. ठीक है, तो अब लिखेंगे मैक्सिमाइज z is equal to 2 more stages. तो क्या रहेगा? यहां से आएगा यानी स्टेज. Two or X3. वेरी नाइस. क्या रहेगा? X2 plus X3. X2, X3. x2 plus x3
सब्जेक्ट टू, अब ध्यान देना, सब्जेक्ट टू x2 into x3 is equal to another state h2. Yes or no? Yes, Yes. sir, right. That means, now listen to what I'm saying. That means, अब इसमें एक जुगाड़ करते हैं. जुगाड़ क्या करते हैं? x3 is equal to h2 by x2 लिख सकता हूं. अब मैं क्या कर रहा हूं, z में x2 वैसे ही रहने देता हूं और x3 की जगह मैं लिखता हूं h2 by x2. ओके विथ एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir, right. अब ध्यान दो, मुझे फाइंड क्या करना है, x2, मुझे फाइंड क्या करना है, x1, x3, x2 और x1 बराबर. Yes. अब अगर sir. मुझे ये फाइंड करना है और मुझे पता है ये सब्जेक्टेड टू मैक्सिमाइजेशन है या नहीं, और अगर मुझे x फाइंड करना है, x2 फाइंड करना है बराबर, x1 तो नहीं फाइंड कर सकता, या तो x3 कर सकता था या तो x2. मैंने z को पूरी तरह किसमें कन्वर्ट कर दिया, x2 में कन्वर्ट कर दिया. तो अब अगर मुझे इसको फाइंड करना है और मुझे पता है ये मैक्सिमाइजेशन है, तो ये एक चीज याद रखना, कोई भी चीज अगर मैक्सिमाइजेशन है तो उसका डेरिवेटिव क्या रहता है, 0. सुना है? Yes, sir. बराबर. उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगा, डेरिवेटिव क्या रहेगा, 0. और उसका सेकेंड डेरिवेटिव क्या रहता है, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. यस और नो? अगर Yes, sir. मैक्सिमाइजेशन रहेगा और अगर मिनिमाइजेशन, सॉरी, मैक्सिमाइजेशन रहेगा तो ये डेरिवेटिव लेस देन इक्वल टू 0 आना चाहिए. सॉरी, क्या होना चाहिए, Less than equals. लेस देन इक्वल टू 0, सेकेंड डेरिवेटिव. अगर मिनिमाइजेशन दिया रहता तो सेकेंड डेरिवेटिव क्या रहना चाहिए था, Greater than 0. मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा है सबने मैथ्स में? Yes, sir. बस वो सबने पढ़ा है या अल्लाह पढ़ा के है, हैं sir. कि नहीं यार, मेरे को तो लग रहा सब Yes, मर गए. sir. अब वर्ड ऐसे निकल रहे ना, मुझसे क्या बोलूं, छोड़ो, ऐसी हरकत नहीं करते तुम लोग. डी बाई डी x2 प्लस h2 बाई x2, इसको मैं ले लेता हूं और इसका डेरिवेटिव लेता हूं और इसको इक्वेट करता हूं 0 से. अब x2 का डेरिवेटिव 1 और इसका डेरिवेटिव h2 कांस्टेंट है, h2 क्या है, कांस्टेंट, -1 अपॉन X square. x2. X square. समझ रहे क्या बोल रहे हो? Yes, sir. हाँ, 1 माइनस h2 बाय x2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0. दैट मीन्स 1 इज इक्वल टू h2 बाय x2 का X2. स्क्वायर. दैट मीन्स x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू h2. दैट मीन्स x2 इज इक्वल टू प्लस और माइनस रूट ऑफ h2. एग्रीड? नाउ Yes, लिसन, x2 इज ग्रेटर देन 0. यार ये कौन है जो यस सर अकेले बोल रहा है, मुझे नाम बताओ. Hamshad. यार अल्लाह, और सब सो रहे हैं क्या? नहीं सर. तो यार रहने दो, कोई कुछ मत बोलो, मैं ही पढ़ाता हूँ. x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x2 अगर ग्रेटर देन है तो माइनस वैल्यू नहीं आएगी. देयरफॉर x2 विल ओनली बी इक्वल टू प्लस रूट ऑफ h2. माइनस, बोलो. समझा सर. ओके, अब ध्यान देते हैं. अब ये आ गया, अब अपने को सेकेंड डेरिवेटिव में चेक करना है कि ये पॉइंट ऑफ एग्जिस्टेंस है या नहीं. तो d2z by dx2 square should be less than equal to 0 for this point to be to check x2 for being a point of maxima. Everyone has heard about it? No, sir. अरे यार डेरिवेटिव में करते थे ना यार, ये 12th में पढ़ा है, इंजीनियरिंग में पढ़ा है, मैक्सिमा मिनिमा नहीं पढ़ा है. सर थोड़ा भूल गए. ठीक है, ये जो भी वैल्यू आती है ना बेटा, इसको इसके सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करने का. dz by dx2 क्या है, देखो, dz by dx2 ये था या नहीं, यही था ना. तो d by dx2 बाहर रखो, 1 माइनस h2 by x2 स्क्वायर. ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस वैसे ही रहेगा, h2 वैसे ही रहेगा, x रेस टू -2 का डेरिवेटिव -2 x रेस टू -3. यस और नो? तो इसको सॉल्व Yes, करो, sir. माइनस इंटू माइनस प्लस 2h2 x2 क्यूब. दैट मीन्स इट इज ग्रेटर देन 0. बराबर? ठीक है, तो जब ये ये ग्रेटर देन 0 रहेगा तो इतना श्योर हो जाएगा कि दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. ओके, कोई है भी क्या यार लेक्चर में? ऐसा लग रहा अकेले पढ़ा रहा हूँ. सर अभी आपने बोले ना कोई कुछ मत बोलो, मैं पढ़ाता हूँ. क्या अल्लाह यार, कसम से क्या आंटी को यार.
अब x3 देखो क्या था, x3 किस पे डिपेंड कर रहा था, h2 बाय x2, तो h2 वैसे ही रहेगा, x2 की वैल्यू क्या है, रूट ऑफ h2, तो x3 कितना आ गया, रूट ऑफ h2। S अब थर्ड स्टेज पे जाते हैं, स्टेज n इज इक्वल टू 3, कितने स्टेज बाकी है, 3 stage 3 more stages to go। अब मुझे बताओ जब 3 more स्टेज रहेंगे तो मैक्सिमाइज क्या रहेगा, z इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3, सब्जेक्ट टू में क्या आएगा, x1 इंटू x2 इंटू x3 इक्वल टू 27 लिख सकता हूं या नहीं, कि h3 लिखना पड़ेगा, 27 लिख सकते हैं। क्योंकि मुझे पता है ये एग्जैक्ट वैल्यू है 27, तीनों का मल्टीप्लीकेशन, तो लिख सकता हूं, ठीक है। यार ये किसका नेटवर्क इशू आ रहा है, प्लीज अपने आप को म्यूट करो। x1 की वैल्यू कितनी थी, x1 और ये x2 कितना था, रूट h2 रूट h2, x3 भी कितना था, रूट h2, तो ये कितना आ गया 27, तो x1 कितना मिल गया 27 बाय, by S2 h2 वेरी नाइस। अब यहां पर आते हैं, जब s1 मिल गया तो z देखो क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3, यस और नो, x1 की Yes, जगह sir. 27 बाय s2। एक और तरीका ऐसा करने से बेटर चाहिए तो s2 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट एक काम करेंगे, s2 विल बी इक्वल टू, जैसे भी लिखना है 27 मैं by लिख लेता x1 हूं, रुको, x1 की जगह लिखा 27 बाय s2, x2 के जगह रूट ऑफ s2 और x3 के जगह रूट ऑफ s2, एग्रीड। yes sir Yes, sir. अब इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूं, प्लीज ध्यान देना, 27 h2 की वैल्यू क्या है, h2 h2 है सर, h2 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 स्क्वायर h2 27 स्क्वायर by x1 है ना। 27 बाय x1 है ना, वही मैं बोल रहा हूं, हाँ 27 by x1 है। बराबर बोल रहा हूं मैं, Yes, sir. 27 by सिर्फ x1 ही बचेगा ना, अल्टीमेटली घूम के x1 ही बचेगा ना। अब h2 की जगह पे क्या लिख सकता हूं, h2 देखो क्या था, h2 वाज इक्वल टू व्हाट, या तो h2 में ही रहने देते, एक काम करते, सुनो, इतना मेहनत करने से अच्छा है इसको इसी में रहने देते, h2 में बना दिया ना, इक्वेशन पूरी h2 में कन्वर्ट कर दी, तो z Yes, क्या आ sir. गया 27 बाय h2 प्लस 2 टाइम्स रूट h2 रूट ऑफ h2, ओके ओके। yes sir अब ध्यान बराबर देते हैं फिर से, dz बाय पूरा h2 में है तो dz बाय ds2 शुड बी इक्वल टू 0, यस, एंड yes d2z बाय ds2 स्क्वायर should be greater than 0 शुड बी ग्रेटर देन 0, तो dz बाय ds2 करते हैं इसका और चेक करते हैं वैल्यू क्या मिलती है, d बाय ds2 ऑफ 27 बाय minus h2 27 by प्लस 2 रूट h2 इज इक्वल टू 0। इज एवरीवन ओके? yes sir yes अब ये देखो क्या आएगा 27, 1 अपॉन h2 का क्या आएगा, माइनस minus 1 1 upon अपॉन h2 S2 का होल स्क्वायर square प्लस इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा 2 upon 1 upon 2 root 2 1 अपॉन 2 रूट 2, बराबर ना, 1 बाय 2 रूट 2, बराबर 2 root h2 सर ओके into बराबर हो सही गया सर बराबर इंटू क्या, इंटू 1 ना। अब ध्यान yes दो, sir तो दैट मीन्स 2 गेट्स कैंसल्ड, क्या बचा, उधर भेज 1 देते upon इसको, तो 1 अपॉन रूट h2 विल बी इक्वल टू 27 बाय h2 स्क्वायर, एवरीवन ओके। yes sir yes अब दैट मीन्स h2 स्क्वायर अपॉन s रेज टू हाफ, h2 रेज टू हाफ इज इक्वल टू व्हाट 27 27, दैट मीन्स s रेज टू 3 बाय 2, 3 by 2 बाय 2, 2 हाँ is equals to एक सेकेंड इज इक्वल टू 3 क्यूब, राइट, yes sir तो 3 एलिमिनेट हो गया, s रेज टू हाफ इज इक्वल टू 3 3, तो रूट s अगर ये है तो s क्या रहेगा, plus minus 3 9 9 yes और प्लस माइनस कैसे आएगा यार, yes sir square आएगा या अल्लाह ये बंदा कौन है यार, s है 9, ठीक है। अब अगर मुझे s, ये s2 है, सॉरी s मतलब ये क्या है s2, तुम इसको इसके फिर से सेकेंड डेरिवेटिव में चेक करके देख लेना, ये सेकेंड डेरिवेटिव में क्या आता है, ग्रेटर देन 0 आता है या नहीं, ओके।
अब देखो Yes, sir. H2 आ गया मेरा 9, अब ध्यान देना H2 अगर मेरा 9 आया तो X1 क्या रहेगा? Hello. 3. कितना हो गया? X1 कितना हो गया? 3. एवरीवन 3. एग्रीज? Yes, sir. X1 आ गया 3. अब ध्यान देते हैं X1 अगर 3 आ गया, अब यहां जाते हैं, ये देखो अब अगर ये 9 है तो X3 क्या हो गया? रूट ऑफ H2 आ गए इन 3, यस और नो? तो X3 मिल गया, S1 मिल गया, दोनों 3 आया, X2 कहाँ है? X2 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 भी रूट ऑफ H2 था या नहीं? Yes, तो sir. X2 भी क्या आ गया? 3. 3. तो तीनों वैल्यू मिल गई या नहीं? Yes. क्या मिला? X1 3 मिला. 3, X2 3, 3. X3 3, मल्टीप्लाई करके देख लो कितना होता, 27. और मैक्सिमाइज Z मैक्स कितना हो जाएगा फिर? 27. X. कितना हो जाएगा? 27. 9 9। हाँ प्लस प्लस हाँ सर. तो मल्टीप्लीकेशन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही नहीं है, वो चेक करने बोल रहा था. हो रही है ना सेटिस्फाई? हो रही. तो ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है. जो पहला वाला बोला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, ये सब के सब एग्जाम में पूछे जाते हैं. ये पूछा गया एग्जाम में. सबको समझा? समझा.